صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش طلباء اور سرپرستوں سے قوم کی اجتماعی فکر کرنے اکبر الدین اویسی کی اپیل۔ دکن میڈیکل کالج میں کونسلنگ کے دوران خطاب۔ محکمہ امکنہ کا مکمل جائزہ لینے کی ضرورت۔ سریکاکولم میں اندراما باٹا پروگرام سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ وائی ایس آر کی تصویر کو سرکاری اسکیموں سے ہٹانے کے اقدامات کا آغاز۔ آروگیہ شری محکمے کو ہدایت۔ اور حکومت کی اسکیمیں وائی ایس آر کی شروع کردہ۔ سابق چیف منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنانے پر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کا اظہار افسوس۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز میں تعلیمی سال 2012 اور 13 کے تحت میرٹ کی بنیاد پر MBBS میں داخلوں کے لیے کونسلنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ کونسلنگ کے دوران پان شاپ مالک، لاری ڈرائیورز، خانگی ملازمین، کپڑوں کی دکان کے ملازم اور الیکٹریشین کے لڑکے اور لڑکیوں کو داخلے حاصل ہوئے۔ قائد مجلس اور مینیجنگ ڈائریکٹر دکن کالج آف میڈیکل سائنسز اکبر الدین اویسی نے کونسلنگ کی نگرانی کی۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز میں تعلیمی سال 2012-13 کے تحت MBBS میں میرٹ کی بنیاد پر داخلوں کے لیے کونسلنگ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی و مینیجنگ ڈائریکٹر دکن کالج آف میڈیکل سائنسز و متعلقہ ادارے جات کی نگرانی میں کونسلنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، ٹرسٹی دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ، ڈاکٹر ذکیہ عابد، پرنسپل دکن کالج آف میڈیکل سائنسز، اور ڈاکٹر کرنل GKN پرساد، ایڈمنسٹریٹر اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کے علاوہ داخلے کے خواہشمند طلباء اور سرپرستوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اکبر الدین اویسی طلباء اور سرپرستوں سے دوبدو بات چیت کرتے ہوئے ان کی کونسلنگ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ قائد مجلس کی تجاویز اور مشوروں پر کونسلنگ میں موجود طلباء اور سرپرستوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ اکثر ایسے مسلم طلباء نے دکن کالج میں داخلہ حاصل کیا جنہیں گورنمنٹ کالجز کے علاوہ دیگر کالجز میں داخلہ مل سکتا تھا۔ اکثر طلباء نے BCE زمرے کے تحت داخلے کو بھی چھوڑتے ہوئے دکن کالج میں داخلہ حاصل کیا۔ اس موقع پر قائد مجلس نے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر میرٹ طالب علم کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے ادارے میں داخلہ حاصل کریں، لیکن اگر میرٹ طلباء کو غیر اقلیتی اداروں میں میڈیکل سیٹ مل رہی ہے تو ایسے طلباء دو کالجز کو چھوڑ کر دکن کالجز میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے طلباء غیر اقلیتی اداروں میں اپنی سیٹ کو چھوڑ دیں تو ان کی جگہ پر کوئی دوسرے مسلم طالب علم کو داخلہ نہیں مل سکتا، لیکن اگر وہ اپنی سیٹ کو غیر اقلیتی ادارے میں حاصل کر لیں تو ایک اور مسلمان کو ڈاکٹر بننے کا موقع مل سکے گا۔ رینک کی بنیاد پر جہاں داخلہ ملنے والا ہے وہاں داخلہ لے لیا جائے تو مسلم طلباء کو 9 تا 10,000 رینک تک بھی مسلم اداروں میں داخلے مل سکتے ہیں۔ قائد مجلس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سال گزشتہ 4% مسلم تحفظات کے تحت بھی MBBS کی نشستیں پر نہ ہو سکیں۔ حکومتوں سے جدوجہد کے بعد مسلم تحفظات کے حصول کے باوجود مسلمان تحفظات کے ثمرات سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ سال گزشتہ کئی نشستیں تحفظات کے تحت پر نہ ہو سکیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ مسلمان قوم میں بڑے پیمانے پر شعور بیداری اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ 5 سال سے مسلسل میں جو کہہ رہا ہوں، 5 سال میں قریب 450 مسلمان ڈاکٹر بننے سے محروم رہ گئے اس غلطی کی وجہ سے۔ تو خدا را میں میرٹ والے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا اختیار تو آپ کا ہے، جہاں چاہے آپ لے سکتے ہیں، آپ کی میرٹ کے حساب سے لے کے۔ اگر گورنمنٹ کا سیٹ ہے اگر آپ لیں گے تو اور مسلمان بچے ہمارے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ان کو اور موقع مل سکتے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، بار بار مسلسل میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے بچے اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ کوئی کہتے ہیں کہ دور ہوتا ہے صاحب آپ کا فریق ہے، تو کوئی کہتے ہیں کہ آپ کا پرانا ہے وہ نیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس تعلیم اچھی ہے وہاں نہیں ہے۔ ارے آپ اگر جو سیٹ نان مائنورٹی کالج میں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایک بھائی اور ایک بہن کو ڈاکٹر بننے سے محروم کر رہے ہیں۔ میرا فرض ہے بولنا، کافی آپ لوگ کے اختیار میں سے کہہ رہا ہوں۔
इंतहाई अफसोस की बात कि 4% रिजर्वेशन के लिए लड़के झगड़ते दे रहे हैं, तो 4% रिजर्वेशन से भी लेने वाले नहीं। और सबसे अफसोस ये है कि हम मजलिस को तनकीद कर रहे हैं, मालूम कई आवाजें हैं, कई जमाने हैं, हम पे तनकीद के लिए आवाजें उठती हैं, जमाने की उठती हैं, लेकिन कौम की तामीर के लिए और ऐसी बेदारी को पैदा करने के लिए, इस शऊर को पैदा करने के लिए उनकी आवाज उठती है। और हम बार बार बोलते हैं, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। यानी अफसोस और शर्मनाक बात नहीं है कि एमबीबीएस में 4% रिजर्वेशन को अवेयर करने वाले मुसलमान मौजूद हैं रियासत में आकर होते हैं। नहीं लेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है मेडिसिन में ले लेंगे, 4% खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। काउंसलिंग में पान शॉप चलाने वाले, लारी ड्राइवर्स, खानगी मुलाजिम, कपड़ों की दुकान के सेल्समैन, इलेक्ट्रीशियंस के अलावा उलमा और डॉक्टर्स के लड़के और लड़कियों को दाखिला हासिल हुआ। सैयदा खतीजा निशात बिनत सैयद वसीमुद्दीन जर्नलिस्ट साकिन मछली कमान को काउंसलिंग में पहला दाखिला मिला, जिस पर लड़की के वालिद ने निहायत खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि उनकी लड़की ने साल गुज़िश्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिले की कोशिश की थी, लेकिन वो महरूम हो गई थी। लेकिन उस मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नसीहत आमेज तकरीर से तहरीक हासिल करते हुए लड़की ने तवील मुद्दती कोचिंग के जरिए किसी तरह मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ठान ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसे दाखिला मिल गया है। वरंगल के सैयद रशीद की लड़की फिरदौस जबीन ने भी एमबीबीएस में दाखिला लिया। सैयद रशीद पान शॉप चलाते हैं। अपनी लड़की के डॉक्टर बनने की सिमत पहले कदम रखने पर वो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी दूसरी लड़की को भी डॉक्टर बनाने का अज़्म जाहिर किया। किले गोलकुंडा के इस्माइल खालिदी, जो आरटीसी में कंडक्टर हैं, अपनी लड़की के मेडिकल में दाखिले पर बेहद खुश नजर आए। महकमे अमकना का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने की जरूरत है। श्रीकाकुलम में इंदिरम्मा वाटर प्रोग्राम के सिलसिले में तीसरे दिन अपने खिताब में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों को कर्ज़जात के मामले में ज़िले सतह पर मुश्किलात बरकरार है, लेकिन उसे दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों को भी हॉस्टल्स में क़याम करते हुए हक़ाइक़ का पता चलाने की हिदायत दी है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की तस्वीर से पीछा छुड़ाने के लिए रियासती हुकूमत ने इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले की पहली कड़ी के तहत सबसे पहले आरोग्यश्री कार्ड्स और उसके तशहीरी मवाद से वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की तस्वीर के बजाय वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की तस्वीर लगाने के लिए आरोग्यश्री मराकज़ और दवाखानों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने इस अहकाम पर फौरी अमल करने की भी हिदायत दी है। उधर साबिक़ वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जितनी भी फलाही स्कीमें हैं वो दर हकीकत साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की कोशिशों और जस्तजू का नतीजा है और इन स्कीमों को वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने ही शुरू किया था। नलगुंडे में मीडिया से बातचीत करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बास कांग्रेसी कायदीन की जानिब से वाई.एस.आर की शख्सियत के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपनी स्कीमों की वजह से ही वाई.एस.आर ने अवाम के दिलों में जगह बनाई थी और अवाम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। वाई.एस.आर हमेशा गरीब अवाम के दिलों में रहेंगे। ज़िले आदिलाबाद के बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगुदेशम के कई कायदीन ने इतवार को पार्टी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर बीसी कायदीन ने तेलुगुदेशम की जानिब से बीसी तबके की फलाह व बहबूद के लिए की जा रही जद्दोजहद पर चंद्रबाबू नायडू से इज़हार तशक्कुर किया। सदर तेलुगुदेशम ने भी बीसी कायदीन को इस बात का तयक़ुन दिया है कि तेलुगुदेशम बीसी तबके के हुकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी और आइंदा इंतख़ाबात में बीसी तबके को मौजू नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने मसले तेलंगाना को पेचीदा बनाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज़ और रियासत में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार है और कांग्रेस को ही अलहदा तेलंगाना मसले की यकसुई करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना से दीगर रियासतों और अजला को पानी की मुंतकली पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने कहा है कि कुदरती माहौलियाती निज़ाम को आलूदगी से महफूज रखने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इतवार को हुसैन सागर को साफ रखने शऊर बेदारी के लिए मुनक़िद की गई दौड़ में हिस्सा लेते हुए श्रीधर बाबू ने हुसैन सागर झील को साफ रखने की शहरियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि नौजवानों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस सिलसिले में क़वायद और क़ानून की पाबंदी करें।
उन्होंने कहा कि हर नौजवान को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाली नस्ल के लिए वो बेहतर सहूलतों के लिए राह हमवार कर सके। उन्होंने अवाम से हुसैन सागर झील में गैर ज़रूरी और प्लास्टिक की अशिया को ना फेंकने की भी अपील की है। तेलुगु फिल्म स्टार मनोज और लक्ष्मी प्रसन्ना भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन पीर को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में गवर्नर ESL नरसिम्हन नौ मुंतखबा सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इम्कान है कि गवर्नर मरकजी वज़रा से भी रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। रियासत में बरखी कटौती का सिलसिला अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से हालिया अरसे में बरखी तलब में इजाफे को देखते हुए पैदावार में इजाफे की जो कोशिश की गई थी उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। 10 से 15 दिन पहले हुकूमत ने गेल कंपनी से 500 मेगावाट ज़ायद बरखी पैदावार के लिए गैस के हुसूल में कामयाबी का दावा किया था। इसके अलावा NTPC से भी रियासत को इजाफा बरखी हुसूल के लिए नुमाइंदगी के सिलसिले में प्रेस नोट भी जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई भी पेशरफ नहीं हुई है। दिन ब दिन रियासत में बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 20 जुलाई को 9073 मेगावाट बरखी पैदावार रिकॉर्ड की गई, जबकि 27 जुलाई को 8623 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। गैस की अदम सरबराही की वजह से गैस से पैदा की जाने वाली बरखी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। बरखी ओहदेदारों ने दावा किया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र और कर्नाटका में अच्छी बारिश होती है तो ज़खायरात में इजाफे से बरखी पैदावार में भी इजाफा हो सकता है। उधर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गैस से पैदा होने वाली बरखी की कीमत फी यूनिट 9 रुपये 72 पैसे मुकर्रर किए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत बारिश का इंतज़ार करेगी या फिर ठोस इक़दाम करते हुए इस मसले की यकसुई के लिए कोशिशें करेगी। इन तमाम हालात को देखते हुए बरखी ओहदेदारों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। इस बात का सबूत ये देखने में आया है कि सेक्रेटरीट के रूबरू ही हाई मास लाइट्स दिन के औकात में भी इतवार को खुले रहे। अब इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो फिर बरखी बहरान कैसे ख़त्म होगा? ओहदेदारों की जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। रियासत की तकसीम मुल्क के लिए खतरा बन सकती है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर जी वेंकट रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में पहले ही कई मसाइल मौजूद हैं और अगर रियासत की तकसीम अमल में आती है तो हालात अबतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि श्री कृष्णा कमेटी ने भी मुत्तहिदा रियासत की ही वकालत की थी। మరి కృష్ణ కమిషన్ రిపోర్ట్ కూడా క్లియర్గా చెప్పడం కూడా జరిగింది। దీంట్లో ఉల్లంఘనలు జరిగినాయని ఉల్లంఘన జరగలేదని చెప్పేటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు। దాని విషయాల గురించి నేను ఎక్కువ పోదలుచుకోలేదు, కాంట్రవర్సీ సబ్జెక్ట్ పోదలుచుకోలేదు। ఈ మధ్య సమైక్య రాష్ట్రం కావాలనే దాంట్లో ప్రథమంగా నేనే మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి వాడిని। ఇప్పటికీ అప్పటికి దాంట్లో భేదాభిప్రాయం లేనేలేదు। ఈ రాష్ట్రం సమైక్యం ఉంటేనే మరి ఆంధ్ర ప్రజలు కానివ్వండి, తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళకి అభివృద్ధికి బాగా ఉంటుందనే అభిప్రాయం గల వ్యక్తిని। కొంతమంది రకరకాలైన మాటలు చెప్తున్నారు। ఈనాడు ఒక ఆయన రాయలసీమ సెపరేట్ రాయలసీమ కావాలంటారు,